السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مہاراشٹر کے وزیر اور نیشنلسٹ کانگریس پارٹی لیڈر نواب ملک سے آج چارشنبے کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ پوچھ گچھ کر رئی ہے۔ معلومات کے مطابق ای ڈی کے اہلکار نے چارشنبے کی صبح تقریباً 6 بجے نواب ملک کے گھر پہنچے، جہاں ان سے تقریباً 1 گھنٹے تک پوچھ گچھ کی گئی۔ گھر میں پوچھ گچھ کے بعد افسران نواب ملک کو تقریباً 7:30 بجے اپنے ساتھ ای ڈی آفس لے گئے۔ صبح 8:30 بجے سے ای ڈی کے دفتر میں ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ ای ڈی نے نواب ملک کو انڈر ورلڈ سے مبینہ تعلق والی جائیداد کے معاملے میں طلب کیا تھا۔ حکام نے بتایا کہ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے رہنما نواب ملک یہاں ای ڈی کے دفتر پہنچے اور منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ کے تحت اپنا بیان ریکارڈ کرا رہے ہیں۔ اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے چوتھے مرحلے میں آج یعنی 23 فروری کو 9 اضلاع کی 59 اسمبلی سیٹوں پر ووٹنگ جاری ہے۔ ان سیٹوں پر صبح 9 بجے تک کل 9.10% ووٹنگ درج کی گئی ہے۔ اس دوران ریاست کے سابق وزیر اعلیٰ اور بی ایس پی صدر مایاوتی نے لکھنؤ کے ایک اسکول میں اپنا ووٹ ڈالا۔ ان کی اپنی پارٹی کے لیڈر ستیش چندر مشرا نے بھی خاندان کے ساتھ ووٹ ڈالا۔ رائے بریلی سے بی جے پی کے امیدوار ادیتی سنگھ نے بھی رائے بریلی کے لال پور چوہان میں اپنا ووٹ ڈالا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ خوابوں کی ریاست بنانے کے لیے ووٹ دیں۔ انہوں نے کہا کہ آج اتر پردیش ودھان سبھا الیکشن 2022 کا چوتھا مرحلہ ہے۔ تمام معزز ووٹرز اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرتے ہوئے اتر پردیش کو خوف سے پاک، فساد سے پاک، جرائم سے پاک، بدعنوانی سے پاک اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہندوستان میں چارشنبے کی صبح تک گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے روزانہ معاملات میں 12% اضافہ درج کیا گیا ہے۔ وزارت صحت کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 15,102 نئے کیسز درج ہوئے ہیں۔ واضح ہے کہ منگل کو ایک دن میں 24 گھنٹوں میں 13,405 نئے کووڈ-19 کیسز اور 235 اموات درج کی گئی ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 278 کورونا مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ ہندوستان میں اب تک کورونا وائرس کی وجہ سے کل 5,12,622 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ جیسی صورتحال پر پوری دنیا میں ہلچل مچی ہے۔ فرانس، جرمنی اور امریکہ کھل کر روس کے خلاف یوکرین کی حمایت میں کھڑے نظر آ رہے ہیں، جبکہ کئی ممالک غیر جانبدار ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں ہندوستان نے غیر جانبدارانہ موقف اپناتے ہوئے کہا کہ تنازع کو بات چیت کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کیا جائے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے فرانس میں اس حوالے سے ایک بیان دیا ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ یوکرین اور روس کے درمیان جاری تعطل کی جڑیں سوویت یونین کے بعد کی سیاست میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کی موجودہ صورتحال کی جڑیں نیٹو کی توسیع اور روس کے یورپی ممالک کے ساتھ بدلتے ہوئے تعلقات میں بھی ہے۔ یہ پچھلے 30 سالوں میں پیدا ہونے والے پیچیدہ حالات کا نتیجہ ہے۔ ریاست کرناٹک میں بجرنگ دل کارکن ہرشا کے قتل کیس کے سلسلے میں 6 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ بعض ملزمین فرار ہیں۔ ایک سینئر پولیس عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ اس دوران منگل کو شہر میں تشدد اور آگزنی کے بعض واقعات بھی پیش آئے۔ مقتول کی بہن نے ہرشا کی بے رحمانہ ہلاکت کو بدبختانہ قرار دیتے ہوئے تمام سے اپیل کی ہے کہ وہ جنونیت چھوڑ دیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ آیا انسانیت کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی ہے؟ 28 سالہ ہرشا کو اتوار کی رات چاقو گھونپ کر ہلاک کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے شہر میں تشدد، آگزنی اور سنگباری کے واقعات پیش آئے اور امتناعی احکامات نافذ کر دیے گئے۔ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس لکشمی پرساد نے میڈیا کو بتایا کہ ہم نے محمد کاشف، سید ندیم، اشفاق اللہ خان، ریحان خان، نہال اور عبد العفان کو اس کیس کے سلسلے میں گرفتار کیا ہے۔ 32 سالہ کاشف کے سوا تمام گرفتار شدگان کی عمر 20 تا 22 سال ہے۔ یہ تمام شیوا موگا کے ساکن ہیں۔ کرناٹک حکومت نے ہائی کورٹ کو بتایا ہے کہ ہندوستان میں حجاب پہننے پر کوئی تحدیدات نہیں ہیں اور واجبی تحدیدات کا تعلق ادارہ جاتی ڈسپلن سے ہے۔ حکومت نے اس الزام کو مسترد کر دیا کہ حجاب پہننے کی اجازت سے انکار دستور کے آرٹیکل 15 کی خلاف ورزی ہے، جو کسی بھی قسم کے امتیاز کو روکتا ہے۔ اڈوپی ضلع سے تعلق رکھنے والی مسلم لڑکیوں کی درخواستوں پر جواب دیتے ہوئے جنہوں نے تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی کو چیلنج کیا ہے، کرناٹک کے ایڈوکیٹ جنرل پربھو لنگ نواگی نے کہا کہ حجاب پہننے کا حق آرٹیکل 25 کے تحت نہیں بلکہ 19(1)(a) کے زمرے کے تحت آتا ہے۔ کرناٹک ہائی کورٹ کی مکمل بینچ میں ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ اگر کوئی حجاب پہننا چاہتا ہے تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، بشرط ہے کہ کوئی ادارہ جاتی نظم کا معاملہ ہو۔ آرٹیکل 19(1)(a) کے تحت جن حقوق کا ادا کیا گیا ہے، اس کا تعلق آرٹیکل 19(2) سے ہے، جس میں حکومت ادارہ جاتی تحدید سے متعلق معقول تحدیدات عائد کر سکتی ہے۔ اس دوران بینچ نے کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کیس کو اس ہفتے ہی نمٹا دیا جائے۔ حجاب کیس کی درخواست گزاروں میں ایک حاجرہ شفا نے الزام عائد کیا ہے کہ سنگھ پریوار کے غنڈوں نے گزشتہ روز اس کے بھائی پر حملہ کیا ہے۔ اس نے حملہ آوروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ حاجرہ نے کہا کہ میرے بھائی کو صرف اس لیے ہجوم نے بری طرح مارا پیٹا کہ میں نے اپنے حجاب کی لڑائی جاری رکھی ہے، جو کہ میرا حق ہے۔ ہماری جائیداد کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ کیا میں اپنا حق نہیں مانگ سکتی؟ اگلا نشانہ کون ہوگا؟ میں سنگھ پریوار کے غنڈوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کرتی ہوں۔ حاجرہ کو جاننے والے مسعود منا نے بھی اڈوپی پولیس سے مطالبہ کیا کہ قاتلوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے الزام لگایا ہے کہ سماجوادی پارٹی اتر پردیش کے اسمبلی انتخابات میں
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से डरा कर मुसलमानों के वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है। एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए ओवैसी ने कहा कि समाजवादी पार्टी अक़लियती तबके की क़यादत को दबा नहीं रही है बल्कि मनसूबाबंद तरीके से इनका सफाया कर रही है। ओवैसी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव पर इल्ज़ाम लगाया कि इनकी पार्टी बरसर इख्तिदार थी, उन्होंने योगी आदित्यनाथ का साथ दिया था। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की फाइल पर दस्तखत नहीं किए थे। ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जब तक जमहूरियत में मुसलमानों का कोई लीडर नहीं होगा, इनके मसाइल हल नहीं होंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तमिलनाडु में मजालिस मुकामी में 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई है। इस कामयाबी पर तमिलनाडु मजलिस के जिम्मेदारों ने जश्न मनाया और असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी को मुबारकबाद देते हुए इज़हार तशक्कुर किया कि उन्होंने तमिलनाडु के वानमबाड़ी बल्दिया में मजलिस के मुकाबले के लिए न सिर्फ इजाज़त दी बल्कि कामयाबी के लिए रहनुमाई की। वानमबाड़ी बल्दिया की 36 नशिस्तों में मजलिस ने 16 पर मुकाबला किया और 2 पर कामयाबी हासिल की। वार्ड नंबर 4 से मजलिसी उम्मीदवार नेमतुल्लाह ने कामयाबी हासिल की, जबकि वार्ड नंबर 19 से मोहतरमा आन नबीला जोजा जनाब वकील हमदान सदर मजलिस तमिलनाडु को कामयाबी हासिल हुई। 19 फरवरी को वानमबाड़ी में बल्दिया के इंतखाबात हुए थे, जबकि आज नतायज जारी हुए। यूक्रेन के बहरान के दरमियान अब अमेरिका और रूस आमने सामने नजर आ रहे हैं। एक तरफ रूसी फौज के ट्रकों के यूक्रेन की तरफ बढ़ने की खबरें सामने आ रही है, तो दूसरी जानिब सदर अमेरिका जो बाइडेन ने वाजे किया है कि वो नाटो बाल्टिक ममालिक की मदद के लिए अफवाज भेज रहे हैं। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक रूसी फौज के 100 से ज़्यादा ट्रकों के काफिले को यूक्रेन की सरहद की तरफ जाते देखा गया। रॉयटर्स ने ऐनी शाहिदीन के हवाले से ये खबर दी है। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक बेलगोरेड के इलाके में रूसी फौज काफिले को यूक्रेनी सरहद की तरफ बढ़ते हुए देखा गया है। रूसी फौजियों के यूक्रेन की सरहद की तरफ बढ़ने की खबर एक ऐसे वक्त सामने आई है जब खुद रूसी सदर पुतिन ने वाजे किया है कि अभी तक यूक्रेन में फौज भेजने का फैसला नहीं किया गया है। तुर्की के सदर ने वसती और मगरबी अफ्रीका के 4 रोज़ा दौरे के दौरान सेनेगल के दारुल हुकूमत डाकार का दौरा करते हुए अफ्रीकी ममालिक के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का आज़म ज़ाहिर किया। रजब तैयब एर्दोगान ने अपने हममनसब मैकी साल के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम इखलास और यकजहती की बुनियाद पर अफ्रीकी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की कोशिशें जारी रखेंगे। तेलंगाना में आइंदा माह पेश किया जाने वाला बजट 2022-23 इलेक्शन बजट हो सकता है। तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरगर्मियों और हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इक़दामात पर मरकज़ी हुकूमत गहरी नज़र रखे हुए हैं और इस बात का जायज़ा लिया जा रहा है कि आया चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव वसत मुद्दती इंतखाबात की सिमत बढ़ रहे हैं या महज क़यास आराइयाँ की जा रही है। रियासती हुकूमत की जानिब से तैयार किया जा रहा बजट पर मरकज़ी हुकूमत और भारतीय जनता पार्टी की जानिब से खुसूसी नज़र रखी जा रही है और यह तफसीलात हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि रियासती हुकूमत बजट के दौरान अवामी फलाह व बहबूद की स्कीमात के अलावा किन नए मनसूबों के ऐलान का इरादा रखती है, क्योंकि मरकज़ी हुकूमत और भारतीय जनता पार्टी कायदीन का एहसास है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति सरबराह व चीफ मिनिस्टर तेलंगाना वसत मुद्दती इंतखाबात की राह हमवार करने के लिए क़ब्ल वक्त असेंबली की तहलील का फैसला कर सकते हैं और मुजवज़ा बजट इलेक्शन बजट के तौर पर पेश किया जाएगा या फिर चंद माह बाद उबूरी बजट की पेशकशी के हालात पैदा किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक सरबराह तेलंगाना राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव उत्तर प्रदेश के अलावा दीगर 4 रियासतों में हो रहे इंतखाबात के नताइज का जायज़ा लेने के बाद इस बात का फैसला करेंगे। लेकिन अब तक जो मनसूबाबंदी की गई इसके मुताबिक कहा जा रहा है कि KCR जारिया साल के अवाखिर में जब गुजरात रियासती असम्बली के इंतखाबात होंगे, इसके साथ तेलंगाना में असम्बली इंतखाबात के इनेकाद की हिकमत अमली तैयार किए हुए हैं। कौमी सतह पर तीसरे मिहाज की तैयारियों में मसरूफ़ तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने फिल्म स्टार प्रकाश राज को अहम जिम्मेदारी दी है और बताया जा रहा है कि इन्हें राज्यसभा की नशिस्त का पेशकश किया गया है। मुख्तलिफ सियासी जमातों और कायदीन से प्रकाश राज के बेहतर रवाबित को इस्तेमाल करते हुए KCR इन्हें तेलंगाना से राज्यसभा के लिए मुंतखब करने पर गौर कर रहे हैं। तेलंगाना में राज्यसभा की 3 नशिस्तें हैं। हाल ही में बंडी प्रकाश के इस्तीफे से एक नशिस्त खाली हुई है, जबकि जून में कैप्टन लक्ष्मीकांत राव और D श्रीनिवास की मियाद खत्म होगी। बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन तीनों नशिस्तों के लिए एक ही मौके पर इलामिया जारी करेगा। रियासती मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है कि तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के 2 माह के PRC के बकायाजात की अदायगी का फैसला किया है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अप्रैल और मई 2021 के बकायाजात की अदायगी से मुतालिक अहकामात जारी कर दिए हैं, जबकि मई 2022 से PRC की बाकी रकम 18 अक़सात में अदा करने का ऐलान किया गया है। मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों और इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन को भी PRC के बकायाजात अदा किए जाएंगे। हुकूमत ने फौत हुए मुलाजमीन के अरकान ख़ानदान को यह रकम यकमुश्त अदा करने का फैसला किया है। ऐसा लग रहा है कि शहर हैदराबाद की पुरअमन फिजा को ख़राब करने की साजिशों का आगाज़ हो चुका है। आज एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें बड़े जानवरों की मुंतकली के मसले पर इलाके करमन घाट में कशीदगी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक बाज़ अफराद एक गाड़ी में बड़े जानवर मुंतकिल कर रहे थे, जहाँ पर
खुद को गौ रक्षक होने का दावा करते हुए अशरार ने उस गाड़ी को रोक दिया। गाड़ी के ड्राइवर ने गौ रक्षकों की गाड़ी को टक्कर दे दी और दोनों ग्रुप्स के दरमियान तसादुम हो गया। इस वाक़े के बाद अशरार ने वहां की एक मंदिर में पनाह ली और सोशल मीडिया पर मैसेजेस वायरल करते हुए हिंदू तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को हनुमान मंदिर वाक़े करमन घाट में फौरी जमा होने की अपील की। कुछ ही देर में ये मैसेजेस सोशल मीडिया पर आम हो गए और इलाके करमन घाट में कशीदगी फैल गई। इस बात की इत्तला मिलते ही रच्चाकुंडा की मीरपेट पुलिस जाए वारदात पर पहुंच गई और अशरार के कसीर तादाद में जमा होने के नतीजे में इलाके में भारी पुलिस फोर्स को मुतय्यन कर दिया गया और इलाके में गश्त में शिद्दत पैदा कर दी गई। अशरार ने हालात को बिगाड़ने की गर्ज से करमन घाट में रोड पर इश्तियाल अंगेज नारेबाजी करते हुए ट्रैफिक को रोक दिया, जिसके नतीजे में काफ़ी देर तक ट्रैफिक के बहाव में खलल पड़ा। पुलिस ने हल्की सी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अशरार को मुंतशिर कर दिया। सोशल मीडिया पर ऐसे मैसेजेस भी वायरल किए गए जिसमें दावा किया गया कि हिंदू तबके से वाबस्ता अफराद पर तेज़ धार हथियारों से हमला किया जा रहा है। इन वायरल मैसेजेस के नतीजे में शहर की आवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई और हालात को काबू में लाने के लिए पुलिस के आला ओहदेदार भी करमन घाट पहुंच गए थे। बताया गया है कि चाकू जनी की वारदात भी हुई जिसमें बाज़ अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। शमशाबाद के इलाके हमीदुल्ला नगर की दरगाह का मुतवल्ली बनने की खातिर एक शख्स ने वक्फ बोर्ड के 2 अरकान और चंद मुलाजमीन को भारी रिश्वत दी है। इस बात का इंकशाफ खुद वक्फ बोर्ड के एक मुलाजिम ने किया है। इस मुलाजिम ने सेक्रेटरी अखिलती बहबूद अहमद नदीम को मकतूब रवाना करते हुए इस पूरे मामले की तहकीकात करवाने का मुतालबा किया है। दस्तगीर नामी मुलाजिम ने पहले रुख्सत ली, बाद में इसने नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया। वक्फ बोर्ड के ज़राए ने बताया कि 25 लाख रुपए से ज़ायद रिश्वत ली गई। बोर्ड के अरकान और मुलाजमीन ने दरगाह की तौलियत इस शख्स के हवाले करने का वादा किया था, लेकिन अचानक इलामिया जारी होने की वजह से बोर्ड का आखिरी इजलास मुलतवी करना पड़ा। दस्तगीर नामी मुलाजिम ने इस बात का इंकशाफ किया और इसने सेक्रेटरी को मकतूब में ये लिखा है कि पूरे मामले में बोर्ड के 2 अरकान के अलावा रंगारेड्डी के इंस्पेक्टर ऑडिटर मुलविस हैं। वाज़ेह के वक्फ बोर्ड में ऐसे कई धांधलियाँ इससे कबल भी पेश आए हैं। बोर्ड में बदउनवानियों की जामे तहकीकात ज़रूरी है। तहकीकात के जरिए ही बाज़ अरकान और मुलाजमीन की काली करतूतों को बेनकाब किया जा सकता है। हैदराबाद सिटी पुलिस के सरबराह CV आनंद ने अपने तमाम अहदेदारों को लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक पुलिस स्टेशनों के अलावा गोशा महल स्टेडियम और दूसरे कई दफातर से लावारिस और जब्त शुदा गाड़ियां हटा देने का हुक्म दिया है, जिसकी वजह से इन मुकामात का दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। गोशा महल पुलिस ग्राउंड्स में मंगल को जब्त शुदा और लावारिस तकरीबन 600 गाड़ियों का अवामी हर्राज अमल में आया। कमिश्नर पुलिस ने 13वें मरहले के अवामी हर्राज का इफ्तिताह किया। बोली दहिंदगान को मुखातिब करते हुए CV आनंद ने इनसे ख्वाहिश की कि वो शफाफ अंदाज में बोलियां लगाए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रियासतों के तकरीबन 550 बोली दहिंदगान में से इस हर्राज में हिस्सा लिया, जिसमें 600 गाड़ियों का हर्राज किया गया। इनमें 568 लावारिस गाड़ियां, 544 टू व्हीलर्स, 21 3 पहिए वाली गाड़ियां और 2 4 व्हीलर गाड़ियां शामिल थी। इस हर्राज से महकमा पुलिस को 51,74,000 रुपये हासिल हुए, जिन्हें सरकारी खजाने में डिपॉजिट करवा दिया जाएगा। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।